coverage on the ongoing investigation underway in the Kanpur encounter probe. Now, more and more details emerging each passing day, and Republic has now accessed some breaking inputs on the whereabouts of gangster Vikas Dubey. We're told that his latest location could have been Bijnor district. The probe has also revealed that around 10 people were spotted in 3 cars in Bijnor, where the borders have been sealed by the cops. So Uttar Pradesh borders that have already been sealed by the cops. We'll in fact taking a word from our reporters also tracking all those details closely. But first up, let's listen into the conversation. All right. Quickly going across to Samarth, who is joining us with more details. Samarth, now details emerging of Vikas Dubey lastly being spotted in Bijnor, though Uttar Pradesh borders have now been sealed. More details if you could share, please. Yes, exactly. Uttar Pradesh police sources have told us that the last location of Vikas Dubey where he has been traced is somewhere near Bijnor, near Khedi police outpost. So these things are happening in Uttar Pradesh. However, the strict vigilance is on from Uttar Pradesh police, and plenty of people are being detained and being questioned about their links with the Kanpur mayhem, in which about 8 cops, including a deputy SP Devendra Mishra, lost his life. However, the major concern for the Uttar Pradesh police is the loopholes coming inside the police machinery. These are the very serious things where an honest circle officer Devendra Mishra complains about SO Vinay Tiwari to the then SSP Anand Dev, but no action has been taken. And apart from that particular SSP has been assigned as STF DIG, who is currently taking the investigations in this Kanpur mayhem, along with IG STF Amitabh Yash. So all these things are happening, and even CM Yogi Adityanath is very angry with all these updates, and he's very worried why all these things are happening, that police officers themselves are involved with such criminals. The very thing, it's not just that a constable or a 2-star sub-inspector rank officer is with some big Vikas Dubey, but the SSP rank officer seems to be with that particular person. However, police haven't confirmed anything, but a letter which is going viral is of CEO, where he himself informed that something bad might happen in that particular area because of the relations between SO Vinay Tiwari with Vikas Dubey, but the then SSP did not take any action, and this was and for that social media is also filled with the hatred against that particular SSP. So all these things are happening, and the major part is that transfers are being taking place. 10 policemen have been transferred to the Chaudhurpur police station. So these are things happening. However, updates coming from Lucknow also that his residence is also being graphed by the LDA officials, as they are looking if there might be some irregularities in the Lucknow residence too. I must tell you that Kanpur residence was bulldozed 3 days back by Kanpur administration, and in which a heavy amount of guns and weapons were recovered by the police. So all these things are happening, and very serious things. And however, the current location of that particular Vikas Dubey, there are plenty of things doing rounds, that he has crossed Rajasthan border, he has crossed UP border or Nepal border, but nothing concrete is coming as yet. But as per the police sources told us that he was last traced somewhere near Bijnor. Yes. All right, so Uttar Pradesh police has now sealed the Bijnor border after these inputs that have now come in, but all evidences leading up to one fact, that there clearly was a police gangster nexus that we are looking at in this particular case, and investigations on that front. But let's quickly also put out the account of the family, wherein the family is saying more and more people are coming every day to ask about his whereabouts. Let's listen into what the mother of Vikas Dubey had to say. अम्मा, राहुल तिवारी का क्या मामला था विकास दुबे से? विकास दुबे से हमारा कोई मामला नहीं रहा है, केवल उनके परिवार के सदस्य है, तो वो राहुल के सारे की बिटिया भी आई है, बर्थडे के बिटिया राहुल के सारे का भी आई है। तो क्या मामला हो गया था? क्या आप लोग FIR करवाने गए थे क्या? कि हमारे लड़का के ससुर के 3 बिटियां आती हैं अकेले, तो वही 3 बिटियां और एक लड़का वही अपनी बहनी के राखो रहा छोटे पर से। तो वो जब तो ओके शादी हुई गई बिकरू में शादी जब ओकी हुई गई, तो ओके बाद वो पर साल अपन खेती अपने नाम करवा ली नहीं, तो नाम करवाइबे मैया जब वहन गए तो वहन तो वो चलत तो
अरे उन आपके ससुर के नाम पे खेत था वो, लेकिन वो विकास दुबे उस पे कब्जा कर लिया था। नहीं, विकास दुबे नहीं करो तो बट घर का कोई? परिवार के। उनके परिवार का? हाँ आप वो जमीन लेना चाहते थे? हाँ, सब पूरी जमीन का आते। और हमारा सबके कहना रहा है कि 3 बिटियां हैं तो तीनों बिटियन का मिले और वो लड़का को मिले। चार फिर वो जमीन विकास दुबे के लोगों ने कब्जे में ले ली थी, तो आप उस पे एफआईआर करवाई। एफआईआर पे आपके बेटा 3-3, 4-4 दिन तक थाने दौड़ा, क्या हुआ? एफआईआर लिखी जा रही थी, नहीं लिखी जा रही? जब अब मार पीट भय तब नहीं लिखी गए, पहले तो लिखी गए सब। और पहले सब राहुल है की तरफ, जैसे राहुल के सब कौन राहुल की तरफ था? पुलिस वाले सब राहुल का जैसे लिखा थे सब, जो कुछ मामला हो तो। इधर जो मामला हुआ, इधर कहा जा रहा है कि राहुल कई बार पुलिस थाने गया, उसकी एफआईआर नहीं लिखी। नहीं लिखी गए, 4 दिन दौड़े, नहीं लिखी गए। तब चौथे दिन कहने लग चलो तुम्हारे कहने लग इंक्वायरी करवा दें। इंक्वायरी करावन हुन लगी। किसने कहा ये सो और 4 पुलिस वाले, हाँ 4 पुलिस वाले और 100 और राहुल का लई के गाड़ी थे और गे बिकरू। हाँ, तो बिकरू में वही पुलिस वाले के यहाँ और 100 का सबका कमरा में बंद कर ली उन। और वो के विकास दुबे, हाँ कमरा में बंद 1 तारीख का, हाँ 1 तारीख का ले गए थे। तो वही उनका कमरा में बंद कर लेने और राहुल का खूब मरवाऊन, चाहे जे थे मरवाऊन, अपने परिवार वाले थे या गांव वाले थे, उनका सब बहुत मारून। अच्छा, तो पुलिस वाले भी थे मारने में कि सिर्फ हाँ, नहीं पुलिस वाले का बंद कर दी उन्होंने, उनके फ़ोन नंबर सब छिटा ली, फ़ोन सब छिटा ली विकास। तो वही बेचारे कुछ कर नहीं पाए। ओके बाद तो जब उनका मार के कानला करने का क्या मतलब था कि वो जमीन छोड़ दो? हाँ, कहते कि जमीन कानला की न ले, जौन तुम्हारा खर्चा लागे वो ले, और बिटिया की शादी जौन करीबे तो ओके पैसा देवे और तुम मन तेरे तल्ला ढील दे खेती ते। हाँ, मतलब जमीन छोड़ दो, बाकी जमीन का पैसा दे रहे थे वो? पैसा कहाँ जमीन के दे रहे थे, केवल जितना कहते तुम्हारा खर्चा बा मुकदमा में जितना ला गए वो पैसा ले। कितनी जमीन है? कितने बीघा? 6 बीघा है, 6.5 जो हो 6 वो इतनी है। अच्छा, मारपीट के बाद फिर राहुल जब घर आया तो राहुल ने क्या बताया आपको? या बताऊँ कि हम ऐसे हम कहो तुम भी करूँ पहुँच कैसे गए? तो कहला कि हमें ये सो तो पुलिस वाले लिवा ले गए थे कि चलो इंक्वायरी करवावन चले। तब कहला हम गए थे, उन्हें सबका कहला कमरा में बंद कर ली, उन्होंने हमें खूब मारून। तब इंजन भाई रोकोगा, कितने बड़े हुई आदमी है, उनते पंगा न ले और लड़ाई ना करो, और का फायदा है? अपन जौन अपन खेतवा है घर में उन्हें अपन गुजर बसर करो, कमाओ खाओ। तो कहने लग कि हमें तो अब कहने लग कि विकास ते डर है कि विकास कितने खन हमें मार सकत है। तो ये जाके ऊपर तेरे कार्रवाई करीन, वह करीन रिपोर्ट। All right, we are getting some big breaking development from the investigation that is been continuing on part of the UP police in the Kanpur raid case, where 8 policemen lost their lives because of the notorious gangster Vikas Dubey. And the update coming in, a very close aide of this notorious gangster called Jay Dubey has been arrested by the police. It is being said that he was close to the police officials as the nexus between the political and the police link is now coming forward. We have Gaurav Trivedi who's joining us live at this point. Let's quickly go across to him for more details. गौरव, ये जय दुबे कौन है और उनका क्या लिंक बताया जा रहा है विकास दुबे के साथ? जी बिल्कुल, आपको बता दें जय वाजपेयी है जिस दिन ये घटना हुई उसके नेक्स्ट डे ही इसकी 3 लग्जरी गाड़ियाँ जो लावारिस हालत में मिली हैं, उसके बाद से लगातार पुलिस ने इससे पूछताछ जारी करी, जिसके बाद कल एसटीएफ इसको लखनऊ उठा के ले गई है। आपको बता दें विकास दुबे के जो भी खरीद फरोख्त के काम थे, जो भी इसके पैसे का एक तरह से बोला जाए पूरा खजांची के रूप में ये सामने आया है। उसका जो पूरा पैसा था उसको यही अपने हिसाब से जो किस तरह से इन्वेस्ट करना है पूरा काम ये देखता था। और आपको बता दें कहीं ना कहीं सूत्रों की बात सामने आई तो विकास दुबे को जो लग्जरी गाड़ियाँ थी वो यही प्रोवाइड कराता था। और जय वाजपेयी की बात की जाए तो पिछले 7 साल में ही आपको बता दें 7 साल पहले ये एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और उसके बाद से लगातार जब से ये विकास दुबे के संपर्क में आया उसके बाद से ही लगातार इसने अपना जो पूरा कारोबार
कारोबार है उसको बढ़ाया। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो जो पुलिस की जांच में अभी तक सामने आया, तकरीबन 30 से 35 करोड़ की जो संपत्ति है वो इसके पास मिली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का पूरा लिंकअप जोड़ रही है। और चूंकि जिस दिन ये दुर्घटना हुई है उस दिन ही विकास दुबे से कांटेक्ट में इसके 2 कॉल्स आए हैं सामने, जिसके बाद से पुलिस ने इसको उठाया था। आपको बता दें इसकी पूरी फैमिली से पूछताछ लगातार जारी है और कई लग्जरी गाड़ियां इसके पास से मिली हैं जो कि बिना नंबर की थी और ब्लैक फिल्म्स के साथ थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी ही गाड़ियों से जो विकास दुबे हमेशा कहीं भी जाना होता और इसकी गाड़ियों से ही चलता था, ताकि किसी तरह का जो पुलिस को अंदाजा ना हो पाए कि विकास दुबे का मूवमेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं इसका क्लियर कनेक्शन विकास दुबे से सामने आ रहा है। इसके बाद से लगातार एसटीएफ ने इसको लखनऊ ले गई, वहां से पूछताछ लगातार जारी है कि किस तरह से उसका जो पूरा हिसाब था कैसे रखता था और क्या पैसे का जो लेन देन है वो उसके बीच में चल रहा था। चूंकि आपको बता दें जो ये जय वाजपेयी है इसका जो पुलिस अधिकारियों से और नेताओं से भी काफ़ी करीब रहा है और इसकी जो भी पार्टियां होती उस सब में विकास दुबे शामिल होता था। कहीं ना कहीं सारे अधिकारी भी उन पार्टियों में रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात सामने आ रही है कि इसके जो कनेक्शंस थे विकास दुबे से काफ़ी अच्छे थे और चूंकि इसके अधिकारियों से भी अच्छे संबंध थे, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है इसकी वजह से विकास दुबे हमेशा बचता चला आ रहा था। बैक टू यू गौरव। जय वाजपेयी है, जय दुबे नहीं। तो हम एक और बात सामने आ रही है, अभी जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है इस केस में वो शुरू हो चुकी है, तो उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल आपको बता दें जो पूरी इसकी प्रॉपर्टी उसको लेकर के पूरी जांच चालू हो गई है और अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट ऊपर दी, जिसको लेकर के एसटीएफ ने लगातार इसको उठाकर इसको पूरी से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें इसका एक भाई है जिसको भी पुलिस ने उठाया है और उसके बाद से लगातार इनकी फैमिली से भी पूछताछ चल रही, किस तरह से जो उसका व्यापार था उसको हैंडल करता था, चूँकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा पैसा किस तरह से इसने कमाया और कैसे इसने इतनी सारी प्रॉपर्टियों को हासिल किया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें इसकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी है उनको ये रहने की जगह देता है ताकि कहीं ना कहीं उनसे उसकी मदद मिल सके। तो इसका एक लिंकअप पूरा बहुत क्लोज समझ में आ रहा है, जिसमें ये पुलिस से ही बहुत कनेक्टेड था और विकास दुबे का पूरा कारोबार जो यही देखता था, जिसके चलते पुलिस ने इसको परसों रात को उठाया था। उसके बाद कल इससे पूछताछ हुई, जिसके बाद से एसटीएफ इसको उठाकर लखनऊ ले गई है और आपको पता है लगातार इससे पूछताछ जारी है। जब बात इसकी सामने आई है जिसमें कई लग्जरी गाड़ियां भी आई हैं इसके पास से, उसमें भी घटना के जस्ट दूसरे दिन वो गाड़ियां इसने अपने घर से हटाकर एक अनजान जगह पर खड़ी कर दी थी। पूछताछ में सामने आई बातों में ये गाड़ियां इसकी निकली। तो कहीं ना कहीं इसका एक क्लोज कनेक्शन निकल रहा है विकास दुबे से। गौरव आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और अपडेट सामने आता हुआ नजर आ रहा है दैट the complainant's family has now spoken out and has made some sensational claims about the entire incident. The family has come out and said that it was the police who completely refused to lodge a complaint against Vikas Dubey. After his complaint, the family had also alleged that they were also beaten up by Vikas. गौरव इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो शिकायत करता है उनकी तरफ से ही पहले जब वो शिकायत अपनी दर्ज कराने गए पुलिस ने साफ तौर से उनको मना कर दिया, बल्कि कहा जा रहा है कि विकास दुबे के आदमियों ने उनको पीटा। जी देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट हाथ पे लगा है। जिसकी बात करें तो जो राहुल तिवारी था जिसके द्वारा ये पूरी कंप्लेन करी गई थी, कहीं ना कहीं वो कई दिन थाने के चक्कर लगाता रहा अपनी कंप्लेन के लिए, चूंकि उसको उसी गांव में मारा गया था। और उसके बाद जब वो चक्कर लगाते लगाते थक गया, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर हुई, तो उसने उच्च अधिकारियों से बात करी, जिसके बाद अधिकारियों ने इसको एफआईआर लिखने के लिए बोला गया। उसके बाद भी जब उसको थाने बुलाया तो उसको पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पॉट पे ले गए। आपको बता दें स्पॉट पे जब वो ले गए तो वहां विकास ने उसको मारा है और कहीं ना कहीं विकास ने जो पुलिसकर्मी थे उनसे भी अभद्रता की है, जिसके बाद से जब अधिकारियों का प्रेशर पड़ा तब ये एफआईआर लिखी गई है। और उसके बाद पुलिस के ही द्वारा इन्फॉर्मेशन लीक करी गई किस तरह से एफआईआर में क्या क्या धाराएं हैं और किस तरह से जो एफआईआर के बाद जो टीम है वो कैसे जा रही है, जिसके चलते ये जो बड़ी दुर्घटना हुई ये हुई। तो आपको बता दें पूरी अगर शुरुआती दौर से बात करी जाए तो पुलिस की भूमिका जो है पूरी तरह से संदिग्ध समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं पूरे चौबेपुर थाने को इसीलिए पूछताछ लगातार जारी। आपको बता दें कल देर रात एसएसपी के आदेश पर 10 नए कांस्टेबल्स को चौबेपुर थाने में अपॉइंट कर दिया गया।
चूंकि जो पुराना स्टाफ था उस पूरे से पूछताछ चल रही, कहीं ना कहीं वो विकास दुबे से कनेक्टेड था, जिसके चलते उन सबसे लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें अभी तक जो 4 पुलिसकर्मी हैं वो निलंबित किए जा चुके हैं और अन्य से बराबर पूछताछ चल रही है आगे की कार्रवाई के लिए। आपको बता दें पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी और पुलिस लगातार जो विकास दुबे उससे कांटेक्ट में रही, जिसके चलते जो राहुल के साथ भी घटना हुई और उसके बाद एफआईआर के बाद जब पुलिस की दबिश गई तो पूरी इंफॉर्मेशन विकास के पास थी और 5 घंटे पहले ये बात पता थी कि आज रात में दबिश होने वाली, जिसके चलते उसने अपनी फैमिली को भी हटाया और अपने जो भी अपराधी मित्र थे उन सबको बुलाया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो एज ही वाज पॉइंटिंग